नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है आप लोगों के? I'm good. Thank you so much for joining at such a short notice, and I really appreciate from the bottom of my heart. Please accept it. थैंक यू, थैंक यू। Yes, and I'm feeling a little more excited for the reason that I was just thinking because 8 तारीख से सारे saloons जो हैं वो operational होंगे. So we were just wanting to have this idea that maybe we can create some kind of awareness, video, and with a person who makes sense. So, and Okay. with a person who's an authority in the field also. Okay. So we could not find any name which is as better as best as you. Thank you. ठीक है। Sorry, Thank I'm little kind of this is all in excitement. No, Right? I think I'm a part of this industry now since a long time, and I really talk sense. I really talk sense with the education. I think Yes, that's required. That's yes, required. yes. And moreover, when you talk about any beauty or saloon business, it's also very important that there has to be somebody, because हर गली नुक्कड़ पे, हर घर में, हर society में, there are parlors, there are saloons, and a person whom we can look forward to, जिसको हम everything, like you are a curriculum basically. So it's important to have somebody like that. Now, shall we start? I would just like to give an introduction. Yeah, Yes. I'm ready. I'm ready. Yes. नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम लॉकडाउन 5 में हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स it has recently issued new guidelines under which the ongoing nationwide lockdown has been eased in phases. Now, there are certain restricted activities like barbershops, spas, and saloons. They'll be open, they'll be allowed to open, and their states, they have been given an autonomy to decide whether their additional restrictions will apply to any part of their state. Like किसी जिले में जहां पर ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है या रेड जोन है, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव होगा उसको खोलने का सलून्स को या नहीं होगा. हरियाणा सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और उनको ब्यूटी सलून से स्पास को ओपन करने से संबंधित, और उसी बारे में आज की हमारी परिचर्चा संवाद एक ऐसी हस्ती से है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बट उनका परिचय किया जाना बहुत बहुत आवश्यक है, बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं, हम लोग उनके सलून्स में जाते हैं, बट वी नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रियली नो अबाउट हु दिस मैन इज. None other than very elegant, very intelligent Mr. Javed Habib. He has 900 plus parlors. He has his academy where he trains people, he skills them, and उनको रोजी रोटी भी मुहैया कराने के साधन ये देते हैं. So we welcome Mr. Javed Habib that he has agreed and consented to discuss, to interact with us कि beauty parlors industry, spa saloon का जो business during the COVID times, and what are the do's and don'ts जो इस समय में चल रहे हैं, how do we really go about it. So here Mr. Javed Habib can help us to throw some light कि किस प्रकार से इस business को beauty saloons के business को जाते हैं. Now, एक चीज जो हमारे को ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग दिस टाइम कि जो हम लग्जरी के लिए पहले जाते थे इस इंडस्ट्री में या फिर पार्लर्स में या सलून्स में या स्पा में, वो अब एक बेसिक बाल कटने से या फिर थ्रेडिंग से या फिर शेव बनाने तक ही सीमित रह गई है. सो जावेद जी, वी जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज योर टेक ऑन इट. देखिए, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. शायद बहुत कम लोग जानते होंगे. इंडिया के अंदर 3 करोड़ बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर है जी. इट्स अ ह्यूज नंबर. यस. और अगर हम लोग एक सैलून या ब्यूटी पार्लर को लेते हैं जिसमें 3 लोग काम करते हैं जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस कंट्री की 9 करोड़ जो घर हैं वो हमारे इस प्रोफेशन से चलते हैं. बिल्कुल. ये नंबर शायद किसी ने सोचा नहीं है जी. तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस कंट्री की 6 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 6% पॉपुलेशन जो है वो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है.
जी जिसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है उसकी कैची, जिसको लोग नाई का काम भी बोलते हैं, जिसको लोग ब्यूटी पार्लर का काम बोलते हैं, जिसको लोग प्रोफेशन बोलते भी नहीं है, जी जिसको लोग बोलते हैं भाई ये चल रहा है, चल रहा है, और अब उसकी चल रहा है। अब इसके बारे में पता चला है कि कितना इम्पोर्टेंट काम है। अब लॉकडाउन ने ये तो सिखा दिया कि आप घर में रहोगे ना, जी आपको काम करना पड़े ना पड़े, लेकिन अच्छा दिखना जरूरी है। वेरी गुड। और तब हमारी याद आई, तब हमें इंडस्ट्री के बारे में लोगों ने सोचा जी कि सच्ची में ये भी इंडस्ट्री है। जी तो जब मैंने बात बोली 3 करोड़ हमारी सालों चलती हैं, उसमें से 90% जो सालों है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं है। जी मतलब वो सालों वो हैं जिसके अंदर उनके फादर बाल काटते थे, मम्मी बाल काटती हैं, घर चलाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो चलाते हैं। जी तो लोगों ने, बिकॉज वो सिर्फ 90% ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं, तो लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जी लेकिन अब रियलाइज कर रहे हैं कि यस, अब ये प्रोफेशन है। एक फायदा और हुआ है इस कोविड-19 का, कि ये इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज होने वाली है। जी लोग अब ब्रांड को ट्रस्ट करेंगे, जी लोग अब अच्छी गुड लुकिंग सालों में जाएंगे, लोग अच्छी रेपुटेड सालों में जाएंगे। तो ये जो नीचे की जो छोटी सालों हैं, मैं बोलूं 20%, 30% या 40%, दे बी वाइप्ड आउट। और ये वाइप्ड आउट क्यों होने वाली है? बिकॉज एक ह्यूमन जो नेचर है ना, कि मुझे एक ट्रस्ट वर्दी सालों में जाना है, तो ये ट्रस्ट जो आ रहा है सालों के लिए, वो हमारी इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो मैं सोचता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड लोगों ने इस प्रोफेशन को शायद फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट दी है, कि घर में बाल कैसे काटते हैं। जो सोचते थे कि बहुत शर्म की बात है कि मुझे घर पे बाल नहीं काटने, लोग मुझे मैसेज भेजते हैं वीडियो पे, आप वीडियो बनाइए कि घर पे बाल कैसे काटे जाते हैं, घर पे कोम कैसे यूज करना चाहिए, घर में कौन सी कैंची यूज करनी चाहिए। मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक राज की बात इतनी बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट फॉर माय हस्बैंड आल्सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन उनकी दाढ़ी भी और बाल सब काट दिए मैंने। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम लोगों को बाल काटने का मौका मिला है। एग्जैक्टली गंजा करने का मौका मिला। चलिए, जो ये डिपेंड करता है आप किसके बाल काट रहे हैं। हस्बैंड के बाल काटें तो उसको गंदा ही करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। Exactly. But that's on the lighter side. But from the hygiene perspective, it was very important also. So मैं एक word थोड़ा सा मैं use करना चाह रही थी, because we are talking about hand washing. Hand washing for 20 seconds. Wash up, wash down, wash besides, and do it properly. How about hair wash? How देखिए, often we should do it? तो जब मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जी 2-2.5 महीने बन रही है, और फाइनली हमारी इंडस्ट्री खुल रही है, तो लोगों को जो डर था कि हमारे घर खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट वो सर्वाइवल पे आने शुरू हो जाए। जी लेकिन इंडस्ट्री खोलना तो आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना और लोगों के दिमाग में ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है। जी तो जो सालों पहले चलती थी और जो दुनिया पहले चलती थी कोरोना से पहले, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। It's very true. जमीन आसमान का डिफरेंस है। जी तो जो आदमी इस चीज को समझेगा नहीं, जी तो मुझे लगता है कि वो शायद इस प्रोफेशन में शायद स्टे नहीं कर पाएगा। तो right. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जी मतलब वो सिर्फ सब कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी ने मुझे बाल काटना सिखा दिया या मेरे फादर ने मुझे बाल सिखा दिया। अब ये ऑर्गेनाइज और ये प्रोफेशन बनने वाला है। तो आपको सच्ची बात ये है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाके कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, जहां पर सब कुछ सिखाएंगे। हाइजीन क्या होता है, सीजर क्या होता है, टॉवल क्या होता है, शैम्पू क्या होता है, शैम्पू की साइंस क्या है, शैम्पू का रोमांस क्या है, बालों का रोमांस क्या है, तो वो सब कुछ सिखाएंगे आप। Right, but what I'm trying to ask you is that when we are talking about hand wash, and you talk about बाल तो हमारे खुले रहते हैं, and स्टाइलिंग के अलावा जब हम सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, सबसे पहले हम अपने हाथ धोते हैं। सिर धोने की बात हम तब करते हैं जब उसमें पसीना आ जाए। So बालों में क्या वायरस नहीं रहता? How it is important to protect our hair during the COVID times? So what do you suggest on that? देखिए, एक चीज समझ लेते हैं हम लोग कि सफाई जो है हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। जी आप किसी भी रिलीजन की बात कर लीजिए, सबसे पहले वो सुबह क्या बोलते हैं कि आप नमाज पढ़िए, पूजा करिए, तो उससे पहले सफाई करते हैं। तो हमारी तो शुरुआत ही सफाई की हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग हाथ धोते हैं, तो हमारा वो हाइजीन पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट कि जो हमारी शॉप में जब एंट्री होती है वहां से शुरू करते हैं। वो हमारा हेयरड्रेसर हो, हमारी चाहे ब्यूटिशियन हो, चाहे हमारा मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे हमारा क्लाइंट हो, सबसे पहले वहां से शुरुआत होने वाली है। और वो शुरुआत क्या होने वाली है
सबसे पहले आपका मास्क, कि आप बिना मास्क के सैलून में मत एंट्री दीजिए किसी को भी, चाहे आपका वो हेयर ड्रेसर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो। नंबर 1, मास्क इज कंपल्सरी। अब मास्क के बाद में कि उसकी सेहत कैसी है, तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मास्क हो गया, उसके बाद में आपका टेम्परेचर चेक हो गया कि आप फेवरिश तो नहीं है। राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ दोनों का, क्लाइंट की बात भी कर रहा हूँ, मैं अपनी टेक्निकल टीम की बात कर रहा हूँ। यही गाइडलाइंस गवर्नमेंट की भी है। मेरी एंट्री शुरू होती है कि सबसे पहले मास्क होना चाहिए, उसके बाद में टेम्परेचर होना चाहिए। जब शॉप में आते हैं या शॉप की सीढ़ी से पहले आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए, क्योंकि आप शॉप में क्या लेके आ रहे हैं, क्या गंदगी लेके आ रहे हैं, कितनी सफाई लेके आ रहे हैं। तो ये शुरुआत तो हमारी एंट्री गेट से होता है। तो शॉप में हमारा क्लाइंट भी आ गया, हमारा हेयर ड्रेसर भी आ गया। अब बात करते हैं बालों की सफाई। देखिए, गंदे बाल काटना तो मैं हमेशा एजुकेट करता हूँ लोगों को, बिना शैम्पू के बाल मत काटना। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हम लोग इतने फंसी हैं बाय नेचर, हम लोग पैसा बचाना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं शैम्पू नहीं कराना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग को अच्छे बाल चाहिए, आपको रोज शैम्पू करना चाहिए। अगर आप दांत धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो बाल क्यों नहीं धोएंगे? बहुत सिंपल आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सुबह उठते सबसे पहले बालों को शैम्पू करेंगे। अब शैम्पू कौन सा करेंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपको कौन सा शैम्पू पसंद है मुझे नहीं पता है, जहां आप रहते हैं वहां का पानी कैसा वो मुझे नहीं पता है। तो मैंने इसका बहुत देसी तरीका निकाल दिया। आप क्या करो, सबसे पहले बालों को गीला करो सब लोग, और उस पर सरसों का तेल लगा दो। सरसों का तेल। और मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने बोला बालों पे, मैंने ये नहीं बोला चंपी करनी है। हम लोग सारे के सारे चंपी में बिलीव करते हैं, तो हमें चंपी नहीं करनी है। मतलब आप सोचो कि आधा इंच से दूर हमारे बालों के अंदर तेल आना चाहिए, ठीक है, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ो। उसके बाद में जो आपको शैम्पू पसंद है, आपको साबुन पसंद है, आप उसको कर लो, तो आपके बाल तो साफ हो गए। और जितना आपके बाल साफ हो गए, ना तो आपके बाल टूटेंगे, ना आपके बाल ग्रे होंगे, तो आपका हाइजीन तो घर से शुरू हो चुका है। ग्रेट। साइंस बिहाइंड इट कि बालों में 5 मिनट तेल लगाने का। हमको तो ये बताया गया है कि रात को आप तेल लगाइए और सुबह धोइए, या 3-4 घंटे पहले लगाइए। भगवान ने रात सोने के लिए दी है, किसने बोल दिया? अगर ऐसा होता तो इंडिया में तो कोई गंजा नहीं होता। अब देखिए, हर तीसरा इंसान तो गंजा है। जब इतना तेल का हमारा यूज चल रहा है, हमारी दादी ने बता दिया तेल करो, तो तब भी आदमी गंजा क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसा तेल ही होता सब कुछ, तो आदमी तो कोई गंजा ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन की कमी है। जो मिथ्स चल रहे हैं ना कि मेरी दादी मेरे उसने ये कर दिया, मेरी मम्मी ने सिखा दिया। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, पसीना है, हमारी बॉडी में स्पीड क्रिएट करता है, और जैसे ही गुस्सा आता हमारे बाल ग्रे होता है, हमारे बाल टूटता है। तो सबसे पहले हाइजीन क्या हुआ? बालों की सफाई। और सफाई कैसे होगी? शैम्पू। और शैम्पू कैसे होगा? सरसों का तेल लगा के। देखा कितना सिंपल है। तो ये तो बात मैंने बोली नहीं प्रीति कि हमें बहुत महंगा शैम्पू लेना है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का कॉस्मेटिक शैम्पू लेना है। हमें तो वो लेना जो हमारे घर में है। और मैंने एक बात और बोला, अगर शैम्पू भी नहीं है, साबुन लगाओ ना, लेकिन उससे पहले सरसों का तेल लगा लेना। बहुत सिंपल बात बोल दी मैंने। See, this is very encouraging, I think, for all over people who are just thinking कि शैम्पू से या फिर आपके बार-बार बाल धोने से आपके बाल पतले हो जाएंगे या ग्रे हो जाएंगे या फिर झड़ेंगे। तो उसके लिए जावेद हबीब जी ने इतना सिंपल फॉर्मूला ऑल ओवर सभी को अपना जो सीक्रेट है वो बता दिया। So I think बहुत सिंपल नॉलेज है। मुंह धोते हैं, दांत because हमारे पास अवेयरनेस नहीं है जावेद जी, so we do not have any idea about it. So this video is specifically to create awareness during this times and the times to come also. So thank you for that. नाम दिया है, तो प्रीति मैंने इसको नाम दिया है, मैंने इसको नाम दिया प्री कंडीशनर प्रोसेस। अगर आप लोग मेरा कंडीशनर प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपके बाल कभी ग्रे नहीं होंगे। जब तक आपका लाइफ का टाइम नहीं आएगा, आपके बाल ग्रे नहीं होंगे, आपके बाल टूटेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल 100 साल चले, मेरा प्री कंडीशन प्रोसेस को फॉलो करो आज के बाद में। लेकिन रोज ये कंडीशन है। This is my request to all the viewers. Whatever Javed Habib ji is trying to make us aware, please follow that. And this is very important. In case not his experience, his father's experience, his grandfather's experience. So he's sharing the wisdom, the intellectual knowledge, the traditional knowledge which he has acquired from his family. So he's sharing it all, and we are very thankful for that, Javed ji. I wanted to know that when we are talking about COVID times, now it is time to really save yourself, your lives and everything. तो जब हम chemical based हम products की बात करते हैं, herbal based
प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. So how we should really conduct ourselves, how often we should go to the beauty parlors, what should be there in our minds कि वो है हमारे दिमाग से निकल जाए कि ब्यूटी पार्लर्स में we are safe. और यदि हमारे को घर में करना है तो what is the do it yourself strategy which you can suggest? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ना, पोस्ट कोरोना और कोविड-19 इट विल बी चेंज कंप्लीटली. जो पहले होता था, जैसे आपने बोला प्रीति जी, इट्स नॉट लग्जरी माइंड एनी मोर, इट्स अ नीड माइंड कि मुझे जाके बाल कटाना, जल्दी वापस आना, बिकॉज वो जगह कितनी सेफ है मुझे कुछ नहीं पता है. तो हमारी सारी सर्विसेज होने वाली बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी. अब एक नया कल्चर निकल के आया. वो कल्चर क्या है? वो है DIY. मतलब आप खुद अपने आप करना चाहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फेशियल होगा वो बन जाएगा DIY, कि आप लोग अच्छे प्रोडक्ट लीजिए, घर के अंदर सर मसाज मूवमेंट सीख लीजिए. ओके, मैनिक्योर DIY, पेडिक्योर DIY, even eyebrows DIY. That is the most important thing I really wanted to know. How do we do that? This is the virtual problem of all the women whom I know. अब पता क्या होगा? अब आ जाएगी वैक्स स्ट्रिप आएगी प्रीति, वैक्स स्ट्रिप आएगी. आपने वैक्स स्ट्रिप लगाई एंड जस्ट क्लीन. तो ये जो कल्चर था ना, ये आईब्रो का कल्चर, थ्रेडिंग का कल्चर, ये मुझे लगता है 5 साल के अंदर तो खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोग DIY कल्चर में चले जाएंगे. और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है, पैसे की कमी है. पैसे की कमी है, लोगों को डर है कि ये कोविड कब तक चलेगा. तो पीपल वांट्स टू सेव मनी नाउ. राइट. सो सलों की सर्विसेज लिमिटेड हो जाएंगी. ये स्ट्रेटनिंग था, ये स्लो हो जाएगा, केराटिन स्लो हो जाएगा, हाइलाइटिंग स्लो हो जाएगा, और बहुत ही ये नेल आर्ट स्लो हो जाएगा, मेकअप स्लो हो जाएगा. ये सब बन जाएगा DIY एंड सस्ती सर्विसेज. ये हमें ये चीज लेके चलना पड़ेगा. तो अब जैसे मेरा क्लाइंट मेरी शॉप में आ गया, उसका मास्क है, उसको हमने सैनिटाइज कर लिया है, हमने शैम्पू किया, बिना शैम्पू के बाल नहीं काटेंगे, और बिना शैम्पू के किसी को बाल काटने भी नहीं चाहिए जी. अब शैम्पू करने का तरीका नया आएगा. अभी तक शैम्पू हमारा पीछे होता था ना, अब हमारा शैम्पू आगे होगा. देखा, नई चीज है जी. जब शैम्पू करते तो हम बात कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में, हमें उसको अवॉइड करना है. तो अब शैम्पू हमारा हो जाएगा फ्रंटल शैम्पू. हमारी सैलून से जो वेटिंग एरिया था वो खत्म हो गया जी. हमारी सैलून में कोई वेटिंग एरिया नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे रिसेप्शन छोटे हो जाएंगे. हमारी जो कॉस्मेटिक का डिस्प्ले है वो छोटा हो जाएगा, बिकॉज़ लोग उसको हाथ लगाते हुए डरेंगे, इस पे किसी और ने हाथ तो नहीं लगा दिया. तो रिटेलिंग कम हो जाएगी, रिसेप्शन कम हो जाएगा, शैम्पू हमारा फ्रंटल हो जाएगा. राइट. अब जब शैम्पू करते हैं, टॉवल डिस्पोजेबल हो जाएगा. तो कितना बड़ा चेन है इंडस्ट्री के अंदर. ये जो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी ग्रो की है, एकदम रेस्पेक्ट आना शुरू हुआ, इसमें थोड़ा ब्रेक लग गया. ब्रेक लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन अच्छा बन जाएगा. ये बात पक्का है. तो हमने शैम्पू किया. शैम्पू के बाद जैसे ही हमारा क्लाइंट हमारी चेयर पे आया, वहां पर भी डिस्पोजेबल, जो कटिंग डाउन है वहां पे डिस्पोजेबल. हेयर ड्रेसर को ग्लव पहनना पड़ेगा, जबकि इतना आसान नहीं है हेयर ड्रेसर को बाल काटना विद ग्लव्स. ये मूवमेंट नहीं आ पाएगा जी, ग्रिप नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा. उसके बाद में जो हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं आमने सामने, वो खत्म हो गया. हम लोग बात करेंगे मिरर के अंदर. राइट. सो इमोशन खत्म हो गया. देखिए, हमारा ये कनेक्शन है ना, क्लाइंट और हेयर ड्रेसर, एक इमोशनल कनेक्शन है, बॉन्डिंग है. एग्जैक्टली. इसके अंदर इसमें ब्रेक आएगा. सो हाउ डू वी हैंडल? सो देखा कितना, सॉरी, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, एंड व्हाट इज द, आप क्या सोचते हैं कि लाइक इंडस्ट्री श्रिंक हो जाएगी जब डिस्पोजेबल ये टॉवल्स आ जाएंगे या फिर मास्क आ जाएंगे, लाइक वेयर यहाँ पर हाथ में आप ग्लव्स पहनेंगे, तो ऑब्वियसली बाल काटने की जो एक कॉस्ट 50, 60, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए थी, वो बढ़ के कितनी हाई हो जाएगी? मुझे लगता है 10-15% का डिफरेंस आना चाहिए. डबल नहीं बोलूंगा मैं. तो अगर कोई डबल करना चाह रहा है, मतलब देन ही वांट्स टू मेक मनी. बट क्योंकि मेरी जो 900 शॉप चलती है, हम लोग अपना पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं, तो हमने अपने जितने पार्टनर है सबको हमने बोला कि आपकी कॉस्टिंग 10 से 15% बढ़ने वाली है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी. तो अगर आप डिस्पोजेबल गाउन की बात कर रहे हैं, कितने का? 20-30 रुपए का पड़ेगा, और जब आप बल्क में लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है. तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन उससे स्टैंडर्ड तो आएगा ना, आपकी सेफ्टी आएगी, आपका ट्रस्ट आएगा. देखिए, ट्रस्ट बनाना जरूरी है. ट्रस्ट नहीं है ना, क्लाइंट कभी आने वाला नहीं है. So for all the people who are listening, like who are the owners of parlors or saloons, please, this is what Mr. Javed Habib is saying.
Please be very professional in your approach and your outlook towards how you want to increase the price of your services. So that is very important. So this is, and this is very प्रीति profound also. प्रीति, एक बात और बोल देता हूँ मैं। जी अभी तक मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, एक हेडर और क्लाइंट की बॉन्डिंग है, जी isn't it? अब तो बॉन्डिंग कैसे नजर आएगी? क्लाइंट का फेस ही नजर नहीं आ रहा, हेडर का फेस ही नजर नहीं आ रहा, तो very इसका true. मतलब क्या हुआ कि आप काम करेगा स्किल, आप काम में कितने अच्छे हैं, आपकी शॉप के अंदर स्टैंडर्ड कितने अच्छे हैं, आप कितने हाइजीनिक हैं, That's true. अगर वो है ना, क्लाइंट वापस आएगा। और ये आपकी मार्केटिंग है। तो आप Exactly. सोचो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, आपका तो चेहरा ही बंद हो गया, जी आपकी आंखों के सिवा आपको नजर क्या आ रहा है? तो कुछ ये भी नहीं बॉन्डिंग है। खत्म होगी, अब आएगी स्किल की पावर। ये स्किल पावर आपका क्लाइंट बनाएगा। बस मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि हाउ डू यू प्लान टू डू दैट, एंड ऑल्सो इन द रूरल एरियाज, वहां पर जो स्टैंडर्ड जैसे आप बता रहे हैं, दिस कैन बी फॉलोड इन द बिग पार्लर्स और मे बी मीडियम साइज पार्लर और स्मॉल पार्लर इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में जहाँ पर 80% जनता जो है वो गांव में रहती है, राइट? सो हाउ डू they follow the standards which you are trying to convey to them? I think it's only through education. Only through education. एक SOP बनेंगे, एक स्टैंडर्ड बनेंगे कि आपको जैसे बिजनेस करने के तरीके होते हैं, जी अब सैलून चलाने के SOPs बनेंगे जी कि from starting from a client coming into a salon, yes हमारे professional people coming into a salon, so SOP has to be followed. And I follow. think for that you need to go to academies to learn the SOPs. क्योंकि अगर एक कुछ उल्टी सीधी चीज हो गई, आपकी जी शॉप बंद हो जाएगी। तो आप वो शॉप बंद कराना चाहते हैं या अपने आप को शॉप में आगे चलाना आगे चाहते हैं, चलाना तो उसके चाहिए। लिए आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो ये Right. एक्सक्यूज खत्म हो गया, एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। Exactly. And how about the basic services के लिए जैसे हम लोग जाते हैं, like maybe for a haircut or maybe threading or eyebrows or shaving, जो बाकी का जो आपने बताया, manicure, pedicure, massage and everything, because everything it involves touching. So the industry will be markedly, it will be on the back foot. Yes, I think maybe for next 6 months time, but I'm sure gradually I think will come up because see मेरी अभी तो हमारी कुछ सालों अभी खुलनी 8 को, लेकिन जैसे हैदराबाद है, जैसे कलकत्ता है, जैसे गोवा है, हमारी सालों खुल चुकी हैं। तो Right. मैंने वहां का 2 वीक का जो एक्सपीरियंस मुझे आया है ना, वो ये आया है कि क्लाइंट स्लो बढ़ रहा है, स्लो ग्रो कर रहा है। और वो Right. कैसे ग्रो कर रहा है, ये सुनने वाली बात है। Yes. देखिए हमारी जो कंट्री बहुत ही कल्चर कंट्री है, तो हमारे घर का जो मेन हेड होता है, जो मुखिया होता है, सबसे पहले वो सालों जाता है। ये Exactly. हमने नोटिस किया, गोवा में चेक किया, हमने कलकत्ता में चेक किया, वो जाके बाल कटाता है और वो Yes. देखता है, वो फील करता है कुछ ठीक कि शॉप के अंदर सच्ची स्टैंडर्ड चल रहा है। Right. और वो आके जब ही सेटिस्फाइड, देन ही सेंड्स द अदर पीपल। तो 2 हफ्ते तो Then इसमें it is लगने वाली, right. देन इट बिकम अ फैशन। नहीं, वहां जाओ, वहीं पर ही जाना है, and it's वहां because जाओ। of word of mouth. नहीं, वर्ड ऑफ माउथ, फैमिली का इंसान है ना, तो वो सबको, बिकॉज उसको अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए पहले। सेफ्टी के तो साथ पहले सामने वो, लोग गए, हमने बाकी लोगों को बताया, so it becomes a yes, chain that way. तो दिस इज द मार्केटिंग, दिस इज द मार्केटिंग। द Yes. मार्केटिंग आपका होर्डिंग नहीं है, मार्केटिंग आपका पेपर में ऐड नहीं है, आपका मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। जी क्लाइंट का सेफ्टी, क्लाइंट को फील होना चाहिए, यस इट्स ए वेरी सेफ प्लेस, यहाँ सेफ्टी है, एंड देन ओनली पीपल विल स्टार्ट कमिंग। सो आई थिंक थिंकिंग चेंज हो गई, मार्केटिंग चेंज हो गई है, Hmm. और सर्विस चेंज हो गई है, करने का तरीका चेंज हो गया, इमोशन चेंज हो गए। Right. And how about for women specifically because they have, comparatively when we say, though now men and women unisex parlors are there, men also do it equally. उनके जो hygiene standards हैं, hair styling and everything is similar. Now, but when you talk about beauty parlor, people only talk about women. So for them, when you talk about skilling, what are the options for them to really, when you say that in the coming times, skilling is more important, do it yourself is more important. So how do we really promote that? Is there anything from your side that is forthcoming, or are you associating with other enterprises, or maybe जैसे आपका brand, it's like at a pedestrian, it's at a one particular level. So are there any small time parlors or a chain which you are trying to collaborate so that they can also spread a message like that which you are doing? प्रीति, एक चीज और होगा, मुझे लगता है कि हमारी जो होम सर्विसेज है ना, वो शायद खत्म हो जाएंगी। Home जो होम services, सर्विस का yes, कल्चर that था will ना, be करके affected. करके फेशियल के लिए बुला लेते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। अभी तो एक डर आ गया कि ये जो फीमेल थी, ब्यूटिशियन थी, ये किस किस के घर गई है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Exactly. तो मुझे लगता है कि होम सर्विसेज भी शायद खत्म हो
हो जाएंगे। और हम वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें होम सर्विस को इंकरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट वेरी सेफ। गो टू अ सैलून जो सैनिटाइज है, गो टू अ सैलून जहाँ का एक हेयर ड्रेसर ट्रेन है हाउ टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। राइट। अब बात कर रहे थे हम लोग लेडीज जेंट्स की। देखिए आजकल का कल्चर यूनिसेक्स का कल्चर है। आजकल कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, ब्यूटी पार्लर मतलब दोनों लोग आते हैं, वहाँ आदमी भी आता है, वहाँ औरत भी आता है, बच्चे भी और आते ये हैं। सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया 2.5 महीने के अंदर इतना अवेयर हो गया है, जिसको सोशल मीडिया का पता भी नहीं था वो सब सोशल मीडिया जानता है। तो आजकल की मार्केटिंग क्या है, ये स्क्रीन है, हमारा टेलीफोन का स्क्रीन है। तो इसके थ्रू आई थिंक आई बीन डूइंग लॉट ऑफ अभियान मैं कर रहा हूँ। मेरा जब फेसबुक चलता है, आई डू अ बाल भारत शो ऑन फेसबुक एवरी डे, तो जहाँ मैं लोगों को यही ज्ञान दे रहा हूँ, क्लाइंट को ज्ञान दे रहा हूँ, हेडर्स को ज्ञान दे रहा हूँ, ये कैसे काम करोगे, क्लाइंट को ज्ञान दे रहा हूँ कि जब आप सैलून जाते हो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई थिंक ये ज्ञान आना जरूरी है। ऑफ कोर्स आई एम ए पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एनजीओ, आई थिंक वर्किंग विद स्किल इंडिया आल्सो, बिकॉज ये एजुकेशन को आगे कैसे ग्रो करेंगे। अगर एजुकेशन आगे ग्रो नहीं करेगी, सफर कौन करेगा, हमारी इंडस्ट्री करेगी ना। तो उसकी सेफ्टी के लिए मुझे सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और मैं ले रहा हूँ। Great. So we wanted to know a little bit more about your बाल भारत जो आपका अभियान जो आपने चलाया है, because our viewers, even in fact I'm not very clear about वो क्या है अभियान, प्लीज उसके बारे में बताइए। देखिए जब से हमारा 21 मार्च से जब हमारे मिस्टर मोदी ने, हमारे पीएम ने अनाउंस किया था, नेक्स्ट डे से मैंने एक शो शुरू किया फेसबुक के ऊपर, जो रोज आता है 12 बजे, और जो कम से कम आधे घंटे से 40 घंटे का शो है, जिसमें मैं लोगों को ये बताता हूँ कि बालों की केयर क्या है, दुनिया के अंदर जहां भी बाल हैं उसकी केयर कैसे करनी है। देखिए हर इंसान के दिमाग में डाउट है, आपके दिमाग में डाउट हो तो मेरे बाल ग्रो नहीं करते, तो आंसर लोग क्या सोचते हैं कि सैलून जाओ, आंसर लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत महंगी कॉस्मेटिक लूं। मैं कहता हूँ ये जो आपका किचन है, ये आपका किचन है ना, इस किचन में सब कुछ है, इस किचन में सब कुछ है, हमें इसको यूज कैसे करना है वो एजुकेशन में आपको दे रहा हूँ अपने बाल भारत शो से। एंड रोज इतने लोग आते हैं, यू विल गेट ए शॉक। 7 से आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड, 8 lakh people, 9 lakh people, 1 million people are watching me every day on my show. Wonderful. It's a huge show. So it is about hair gyan, and it is process versus cosmetic. लोग सोचते हैं अच्छी कॉस्मेटिक चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छे प्रोसेस चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैना लगाने का तरीका। देखिए हैना हमारे इस कंट्री का कल्चर है ना, हर दूसरा इंसान हैना लगाता है, और इस 2.5 महीने के अंदर आप लगाते हो, इस 2.5 महीने के अंदर कलर तो मिला ही नहीं, तो हैना लगाओगे। तो मैंने लोगों को सिखाया कि हैना लगाने का, बट हैना लगाने का तरीका बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज, बालों का ऑरेंज कलर चला जाएगा, बाल कभी रफ नहीं होंगे। अब देखो कितना अच्छा मैंने प्रोसेस बना दिया। आप पहले बालों को गीला करो, ये सबके लिए है, ये सबसे अच्छी चीज है। How to put henna on your head from Mr. Javed Habib. Yes sir. तो आप पहले बालों को गीला करेंगे, फिर बालों पे तेल लगाएंगे, प्री कंडीशनिंग करेंगे, फिर बालों को शैम्पू करेंगे, बालों को 80% ड्राई करेंगे, जो हैना लगाना मिक्स कर लीजिए, बालों पे लगाया, आपने उसको 30 मिनट के लिए छोड़ा। 30 मिनट छोड़ने के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया, आपने लिया दोबारा तेल और पानी के साथ बालों को इमल्सिफाई कर दिया। तो आपके बालों में हैना लगी हुई है, आपने तेल डाला, पानी डाला, आप उसको 5 मिनट के लिए इमल्सिफाई किया, और बाद में क्या करेंगे, सिर्फ रिंस करेंगे। देखा कितना अच्छा प्रोसेस है। आपके बाल ना तो ऑरेंज होंगे, ना आपके बाल झाड़ू बनेंगे। इस प्रोसेस की किसी ने बात नहीं की। हर आदमी क्या बात करता है, मेरी हैना सबसे अच्छी है। मैं कहता हूं मेरा प्रोसेस सबसे अच्छा है। तो ये बाल भारत के अंदर मैंने क्या किया, लोगों को सिर्फ बताया कि प्रोसेस क्या होता है। तो लेट्स शिफ्ट टू अ प्रोसेस देन कॉस्मेटिक्स। आई थिंक दिस इज maybe you can have Javed ji's SOPs for applying henna, for applying for cutting the hair, for applying hair oil. You should have a properly and जिसको popularize किया जाना चाहिए. That is more important. हम ये हमारे इंडिया का कल्चर है, प्रीति, हमारे इंडिया का कल्चर है जो लोग भूल गए। तो मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ जो अजंता एलोरा में आपको मिलता है 5000 पहले। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। दुनिया का हेयर फैशन तो भारत लेके आया है, लंदन लेके नहीं आया है। हमें आप सोचो, अजंता एलोरा 5000 पुराना है। जब आप देखते हैं तो आपको बाल नजर आते हैं। देखिए कितना पुराना कल्चर है हमारा। तो मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ। राइट। और हमें पता है कि ये करना है, कैसे करना है ये नहीं पता। सो वो हमारे को आपने आज ज्ञान दिया। अदर देन दैट आई जस्ट आल्सो वांटेड टू नो दैट स्किलिंग के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कहीं ना कहीं
ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्सेज हो रहे हैं. So, how about with the minimal fee structure? How can that be done? Is there anything which you are having it in pipeline, or something which can really help the masses to skill them? प्रीति, हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि हर चीज महंगी होती है? पहली बात तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, क्यों हम हर चीज महंगी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैं मानता हूं कि लोग बहुत बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट जो आपकी नीड है, जैसे मैंने आपको बताया हैना का, आप हैना प्रोसेस का कोर्स करिए ना, 2 दिन का करिए. आपको बाल काटने का 2 हफ्ते का कोर्स आप उसको कीजिए. तो आप क्या करो, उसको शिफ्ट में कर दो. जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीज एक साथ सीखनी है. आप पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद में आप अपने आप को स्पेशलाइज बना लीजिए, हैना लगाने के लिए, कलर करने के लिए, स्ट्रेटिंग करने के लिए, शैम्पू करने के लिए. तो ये आपको इंस्टीट्यूट पे जाना ही पड़ेगा उसके लिए, और आपको वहां जाके सीखना पड़ेगा. और ये सस्ते कोर्सेज हैं, कोई महंगे कोर्सेज नहीं हैं. और बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ 1 जुलाई से, या मे बी जुलाई में समटाइम. आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग नाउ. ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ. बाल कैसे काटते हैं, ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, हाईलाइटिंग कैसे करते हैं, बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं और बहुत सस्ते कोर्सेज मैं शुरू करने वाला हूँ. Wonderful. See, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? So I think we have culled out a lot of information from you. Other than that, I just really wanted to know that when you talk about, because सबके mind में एक ये चीज आ रही है कि when you are a brand, but not the population, the 9 crore parlors which are existing in the country, उनके लिए और जो customers आ रहे हैं, win-win situation दोनों के लिए रहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस भी ना पहली अफेक्ट बात हो, तो अपने आप को ऐसे बिजनेस भी ना अफेक्ट हो. ओके, और आप बोलिए प्रीति, आप बोलिए. या व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो छोटे पार्लर्स हैं, छोटे सेटअप्स हैं, मीडियम सेटअप्स हैं या बड़े सेटअप्स हैं, उनका बिजनेस भी ना अफेक्ट हो आने वाले समय में. बिकॉज नाउ वी आर ऑल वेरी अवेयर कि हमारे को मास्क लगाना है, हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमारे को एवरीथिंग डूज एंड डोंट्स वी आर अवेयर इन लास्ट 4 लॉकडाउन जो अभी हुए हैं. नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन एंड टू लर्न टू लिव विद कोविड. It will go in its own pace, and that's how now unlock has started. Now जब unlock start हुआ है तो धीरे धीरे करके unlock 1, unlock 2, unlock 3 चलेगा. So ऐसे ही धीरे धीरे करके customers भी आएंगे और business भी normalize होगा. So what I'm asking is that what is your suggestion, what is your encouragement, words of encouragement for the people who are doing the business, who have suffered losses? Because I've heard there are many people who have called us that they have no business. उन्होंने 2 हफ्तों में सिर्फ 200 या 300 रुपए कमाए हैं. How they are surviving, they only know it. But and it varies. This condition varies from people to people. Same is with the customers. हम लोग डरे हैं कि हम लोग जाएं पार्लर में या नहीं जाएं. Whether it's a good option to go or not. अपनी लाइफ को रिस्क करने वाली बात है या नहीं है. So now, what would be the strategy to have a win-win situation where there'll be no fear and we go ahead and get ourselves, beautify in hygienic surroundings? देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया, ट्रस्ट. आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ वर्ड कॉल्ड ट्रस्ट इन क्लाइंट्स माइंड. आप ये मत सोचो कि मैं पहले एक दिन के अंदर 10 क्लाइंट करता था. आप 1 क्लाइंट करो, वो 1 क्लाइंट 10 क्लाइंट भेजेगा. लेकिन ये डेफिनेटली सिस्टम आएगा, टाइम के साथ आएगा. मैं सोचूं कि ओवरनाइट में पैसा कमाना शुरू कर दूं. अभी मैं आपको बताता हूँ, पटियाला से मेरे पास किसी का कॉल आया, कहता हमारे पंजाब में तो सालों खुल चुकी हैं, बट 2 दिन में एक भी क्लाइंट नहीं किया. घरे बैठे लोग. तो ये टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं है. गवर्नमेंट हमें ऑफकोर्स सपोर्ट कर रही है, सब कुछ हो रहा है. ये सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया इंसान को, क्लाइंट को अवेयर कर दिया, इवन हेटर्स को अवेयर कर दिया. मैं सब हेटर्स को क्या बोलूंगा, अपने आप को अवेयर करो. ये जो SOP है इंडस्ट्री के, इसको सीखो और 1 क्लाइंट करो, लेकिन अच्छा क्लाइंट करो, और ऐसा करो कि वो क्लाइंट 10 लोगों को भेजे. तो ये आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा. आप में कितनी आग है, कितनी भूख है कि मुझे सर्वाइवल के लिए क्या करना है. I think that's the education. That's the education. Yes, education, and that is also, and that you are saying, how much you really want to survive with your skill. That is important. So yes. I think it's a lot of information which I think we have gained today, and thankful to you that I think a lot of people, it was very informal and very quick
session in a very short span of time, and we never wanted it to be very structured also. And thank you for that, and really appreciate all your efforts which you are doing with the hair, your experiments, the work which you are doing, and how you are encouraging people. And we look forward for your Facebook videos, your Bal Bharat Abhiyan. Yes. मेरा YouTube चैनल चलता है, जावेद हबीब है एक्सपर्ट के नाम से चलता है, 800 वीडियोस के अंदर. I think for all these people, I have around 800 video on hair. तो अगर आपका कोई भी बालों का इश्यू है, you can just log into my YouTube channel. It's called Javed Habib Hair Expert. Javed is with W. It's not with V. JAWED Hair Expert. तो 800 वीडियो क्या सीखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, कितनी भूख है आपके अंदर आप पे डिपेंड करता है. And for the people, for the customers who want to go, a word of encouragement for them as well. Your customers. कुछ नहीं किया, लाइफ खत्म नहीं हुई है, लाइफ शुरू हो रही है. Exactly. जुनून के साथ काम करो, रोमांस के साथ काम करो. ये सोचो कि मैं आज पैदा हुआ हूँ. Yes. और जब पैदा हुए ना, नए माइंड लेके चलो, नई ज़ील लेके चलो, and नया फ्यूचर लेके चलो. That's true. And finally, Haryana say, we are talking about our state, and that's what our CM also says, that Haryana say Corona हारेगा और भारत से भागेगा. Thank you so much, Mr. Javed Habib, for being with us. तो सब जगह. Exactly. Thank you so much for your time. Namaskar. Namaskar. Thank you.